کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے اگلے 1 منٹ کے اندر وہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ پورے روب کے ساتھ چلایا تھا۔ اس کی دھاڑ سے سبھی ملازم سہم چکے تھے۔ کریمہ بائی جلدی سے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی، چھوٹے صاحب بیٹھیے، میں ابھی اس لڑکی کو لے کر آتی ہوں۔ مگر وہ کھا جانے والی نظروں سے ہی کریمہ بائی کو دیکھ کر کہنے لگا، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ حرام ہے۔ جب تک میں اس لڑکی کو عبرت کا نشان نہیں بنا دیتا مجھے چین نہیں ملے گا۔ کس کی اجازت سے اسے حویلی کے اندر لایا گیا؟ اس کے ناپاک قدموں کو اس حویلی میں داخل ہونے بھی کیسے دیا گیا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے نہیں ہیں؟ جہاں حویلی کے در و دیوار ابراہیم خانزادہ کی آواز سے کانپ رہے تھے، وہیں وہ نازک اندام لڑکی کمرے کے کونے میں بیٹھی ڈر سے زرد ہو رہی تھی۔ جانتی تھی نیچے اٹھنے والا شور اسی کی وجہ سے ہے۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی جو پے در پے تکالیف نے، مصیبتوں نے اس معصوم سی لڑکی کی راہ دیکھ لی تھی۔ وہ روتے ہوئے اٹھی اور راہ فرار تلاش کرنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر بند تھی۔ ایک نظر آس پاس دیکھا، اس وقت اسے کوئی بھی ایسا مقام نہیں ملا تھا جہاں پر وہ خود کو چھپا سکتی۔ وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں کبھی بھی خود کو ابراہیم خانزادہ کے حوالے نہیں کروں گی۔ کچھ دیر پہلے جس قدر شفافیت سے اسے اس گھر میں لایا گیا تھا وہی ابھی وہ نہیں بھول پائی تھی۔ جب کریمہ بائی نے اشارہ کیا کہ چھوٹے صاحب وہ لڑکی اس کمرے میں ہے، ابراہیم خانزادہ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف گیا تھا۔ دھڑلے سے دروازہ کھولا مگر سامنے پورا کمرہ خالی تھا۔ چاروں اور نظر دوڑانے کے بعد کہنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ آپ تو کہہ رہی تھی وہ لڑکی اس کمرے میں ہے۔ کریمہ بائی بھی حیرت کی انگلی دبائے کہنے لگی کہ سچ ہی تو کہا تھا میں نے، اس لڑکی کو خود میں نے اس کمرے میں بند کیا تھا چھوٹے صاحب، اور ابھی آپ نے ہی آ کر یہ دروازہ کھولا۔ یہ سن کر ایک گہری مسکان ابراہیم خانزادہ کے چہرے پر پھیلی۔ اچھا، تو اس لڑکی کو چھپن چھپائی کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ میں بھی بہت سے کھیلوں میں ماہر ہوں، شاید یہ لڑکی مجھ سے واقف نہیں ہے کہ میں پھر خود سے ہارنے والوں کا حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابراہیم خانزادہ دروازے کو اندر سے لاک کر چکا تھا اور باہر سے اپنی روبدار آواز میں کریمہ بائی کو کہنے لگا کہ دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دو، جب تک میں نہ کہوں دروازہ باہر سے مت کھولنا۔ کریمہ بائی بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اب اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں چھوٹے صاحب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ابراہیم خانزادہ نے کمرے میں چاروں اور نظر دوڑائی۔ کمرے میں سامان ہی کتنا تھا، بیڈ تھا، ڈریسنگ ٹیبل تھا اور سامنے الماری موجود تھی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ابراہیم خانزادہ نے بیڈ کے نیچے دیکھا جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ الماری میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ گھبراہٹ میں اس پر رکت طاری ہو چکی تھی اور پہلے اس نے کبھی بھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ جیسے جیسے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے اسے لگا جیسے آج اس کا سانس یہیں پر دم توڑ جائے گا۔ ایک جھٹکے سے ابراہیم خانزادہ نے الماری کھولی تھی۔ وہ جو بڑی مشکل سے خود کو الماری میں ایڈجسٹ کر کے بیٹھی تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور آ کر سیدھا ابراہیم خانزادہ کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ ابراہیم خانزادہ نے بھی ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر الماری سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی ابراہیم خانزادہ کے لیے کوئی وزن ہی نہ رکھتی تھی۔ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اسے اٹھا کر وہ اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے قرۃ العین نے اپنا آپ ابراہیم خانزادہ سے چھڑوایا۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی، گھبراہٹ سے پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بال بکھرے تھے، ہونٹ پر ہلکا سا زخم کا نشان بھی تھا جو کچھ دیر پہلے اس گھر میں استقبال کے طور پر کسی تمغے کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ابراہیم خانزادہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تو جیسے پلکیں جھپکنا بھول سا گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی جسے اس گھر میں ونی کر کے لایا گیا تھا اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ عمر میں اس سے 12 سال چھوٹی تھی مگر اس وقت روتی سی سکتی ہوئی اس حالت میں بھی ابراہیم خانزادہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بڑی مشکل سے ہانپتے ہوئے سانس لے کر قرۃ العین دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ آپ کو مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے واپس اپنے بابا کے پاس جانے دیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، میرے ساتھ وہ سلوک مت کیجیے گا جو ونی میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی مگر ابراہیم خانزادہ کا سارا غصہ تو جھاگ کی طرح جیسے کہیں بیٹھ ہی چکا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت قرۃ العین کے گلابی ہونٹوں پر تھی جن پر ہلکا ہلکا زخم کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ ابراہیم خانزادہ نے بغیر بولے قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے ابراہیم خانزادہ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے قرۃ العین پیچھے قدم اٹھانے لگی، مسلسل رو رہی تھی مگر اس وقت ابراہیم خانزادہ تو جیسے اس کی آنکھوں اور سسکیوں پر بہرا ہو چکا تھا۔ پیچھے دیوار لگ گئی اور آگے پتھر، دل ابراہیم خانزادہ وہ تو جیسے ان کے بیچ میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ جب آگے بڑھ کر وہ اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ قرۃ العین اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر گرتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ قرۃ العین کے ہونٹ پر رکھ چکا تھا۔ ہلکا ہلکا رسنے والا خون ابراہیم کے ہاتھ پر لگا۔ قرۃ العین نے سسکی بھری تھی۔ ابراہیم خانزادہ نے وہ خون اپنی انگلیوں میں مسلنے کے بعد کہا کہ ان لبوں کو تو چھو کر میں اللہ کی دنیا کی سرشاری میں ڈوب جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کس کمبخت نے تمہارے ان ہونٹوں کو زخمی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ قرۃ العین کو لگا جیسے اس کے جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ یہ کیسا شخص تھا
ये इंसान था या कोई जिन था जो उस पर मुसल्लत कर दिया गया था। घबराते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ कुछ भी मत करें, मैंने पहले इस घर में अपना इस्तकबाल होता देख लिया। खुदा के वास्ते आपको। बार बार उसकी मिन्नतें तरले सुनकर इब्राहिम खानजादा कहने लगा, चुप करोगी या नहीं? जितना पूछा है उतना जवाब दो। तुम्हारे होंठों पर ये जख्म कैसे हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पर नील और सुर्ख निशान क्यों आए? इब्राहिम खानजादा की नीयत उस लड़की को देखकर बदल चुकी थी। वो उसके साथ आज की रात वहशियाना तरीके से गुजारना चाहता था, मगर उसके चेहरे पर मौजूद इन निशानों को देखकर उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। दरवाजा खोलकर करीमा बाई को अंदर बुलवाया। कुछ देर पहले जो कुछ यहाँ पर हुआ था, करीमा बाई घबराते हुए एक एक लफ्ज बताने लगी। किसी मुजरिम की तरह इस लड़की को रस्सियों से बांधकर हवेली के बीचों बीच लाया गया था। आंखों पर पट्टी बंधी थी, दोनों हाथ बंधे हुए थे, जिनमें मौजूद रस्सी को सुल्तान दिलावर खान खींच कर ला रहा था। रस्सी लाकर सीधा जरीना बेगम के हाथ में दी थी और इस लड़की को धक्का देकर जरीना बेगम के कदमों में गिरा दिया गया था। फिर कहने लगा, हुजूर, आपके छोटे बेटे की कातिल की बहन वनी होकर यहाँ पर लाई जा चुकी है। अब आपकी मर्जी से जलते हुए कोयलों पर चलाएं या हमारे पालतू कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ दें, या फिर इस हवेली का एक एक मर्द इसे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करे। ये अब हमारी मलकियत है। किसी ने एक मर्तबा भी इस मासूम से लड़की से नहीं पूछा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। इससे पहले कि जरीना बेगम अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसे कहती, एक जोरदार थप्पड़ उसके ऊपर पड़ा था। थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं बल्कि लैला थी। थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि उसके होंठ पड़ चुके थे। वो सिसक सिसक कर रोने लगी, रोकर कहने लगी कि मेरा कसूर क्या है? क्यों मारा जा रहा है मुझे? मैंने कोई जुल्म नहीं किया किसी पर भी, मैंने किसी की जान नहीं ली। आखिर कैसे लोग हैं आप? जिसने गलत किया वो खुला घूम रहा है और मुझे किस जुर्म में यहाँ पर लाया गया? जरीना बेगम ने पहली बार वनी में आने वाली लड़की को जबान चलाते देखा तो आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़कर सामने पड़े मेज पर पटका था। वो सिसक रही थी, मगर जरीना बेगम उसे धक्का देकर कहने लगी, जबान बंद। खबरदार, जो मैंने तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज भी सुना तो अपनी औकात मत भूलो, वरना पल पल मौत के लिए तड़पोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी। न जाने कितने थप्पड़ों की बौछार थी जो जरीना बेगम और लैला ने उस पर कर दी थी और फिर उसे किसी फालतू सामान की तरह सामने कमरे में फेंक दिया गया। जैसे जैसे करीमा बाई ने उसके बारे में इब्राहिम खानजादा को बताया, उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। इब्राहिम खानजादा की आवाज सुनकर लैला रुख, जो अपने कमरे में मौजूद थी, जल्दी से निकलकर उसके कमरे में आई। सामने उस लड़की को और फिर इब्राहिम खानजादा को खड़ा देखकर उसके माथे पर कुछ झटका और फिर कहने लगी, अरे सरताज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दफा कीजिए इसे। ये लड़की को वनी होकर इस घर में आ गई है। अब सुल्तान लाला और मुस्तफा खानजादा इसको देख लेंगे। आप चलिए यहाँ से। न जाने क्यों मगर उसे इब्राहिम खानजादा की इस लड़की के वजूद पर बढ़ती नजरें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। यूं लैला रुख का उस पर हक जताते देखकर इब्राहिम मलिक गुस्से से उसकी तरफ पलटा। बगैर लिहाज की एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। थप्पड़ मारकर कहने लगा, तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम्हें इब्राहिम खानजादा को बताओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपनी औकात याद है ना तुम्हें, या बार बार भूल जाती हो? ये लड़की इस घर में वनी होकर आई है, मेरे लिए ही आई है। मैं इस लड़की से निकाह करूंगा और अभी इसी वक्त करूंगा। करीमा बाई, जाओ, जाकर मौलवी साहब को बुला कर लाओ। ये लड़की मेरे निकाह में रहेगी और खबरदार जो घर के किसी और मर्द ने इस पर बुरी निगाह डालने की कोशिश भी की तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मलकियत है। जिस कदर कमीनगी से आंखों में दरिंदगी सजाए इब्राहिम खानजादा अल्फाज कह चुका था, लैला रुख को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो इब्राहिम खानजादा की बीवी थी। रोते हुए कहने की, खान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खुदा का वास्ता इस वनी में आई हुई लड़की को मेरे मुकाबिल मत खड़ा कीजिए। वहीं वनी में आने वाली वो लड़की जिसका इन सबसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं था। इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपनी बहनोई की बातों में आकर अपने बाप को लेकर इस घर में रहने के लिए आ चुकी थी। और बहनोई ने कैसा इंसाफ किया था इसके साथ। वो तो पल पल तड़प रही थी, रो रही थी। दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। इब्राहिम खानजादा ने उस बेसुध जमीन पर गिरता देखा तो फौरन बढ़कर पांव की ठोकर उसके पेट पर मारी, जैसे कि यकीन कर रहा हो कि जिंदा भी है या मर गई। वो मासूम सी लड़की फर्श पर बेसुध पड़ी थी, सांसें घुट घुट कर चल रही थी। चलती सांसें देखकर फौरन करीमा बाई को कहने लगा, जल्द से जल्द इस लड़की को होश में लाओ। बहुत ज्यादा ही नासुक बनी फिर रही है, इसे यहाँ के तौर तरीके समझाओ और सिखाओ कि वो वनी बनकर इस घर में आ चुकी है, इसलिए ड्रामेबाजियां जिस कदर जल्दी हो सके बंद कर दे। कुछ देर बाद मौलवी आने वाला है, इससे पहले से तैयार करके नीचे लाओ। ये कहकर अपनी ही जुस्त में इब्राहिम खानजादा वहां से जा चुका था, जबकि लैला रुख को लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। वो रोते हुए इब्राहिम खानजादा के पीछे दौड़ रही थी। जरीना बेगम के कदमों में गिरकर कहने लगी, खुदा का वास्ता आपको कुछ करिए, मुझ पर कयामत आने वाला है। वनी में तो वो कमतर लड़की आई है, उसके घर वालों ने हमारे छोटे खान की सांसें छीन ली, मगर अब आप लोग मेरी जिंदगी पल पल मौत क्यों बना रहे हैं? प्लीज बड़ी बेगम खान को समझाएं, मेरे साथ नाइंसाफी मत करें। आप जानती हैं मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो मेरे सामने अगर किसी गैर लड़की को खड़ा कर देंगे तो मैं क्या करूंगी? जरीना बेगम ने आंखों में आने वाले आंसुओं को पहुंचा और फिर कहने लगी, तुम इस घर की खानदानी बहू हो और वो वनी में आई लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके साथ जो कुछ होगा घर के मर्द बेहतर जानते हैं। तुम उसे अपने पांव की जूती बनाकर रखना, वो कभी भी तुम्हारे सामने सर नहीं उठा पाएगी। मगर लैला रुख तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि
इब्राहिम खानजादा जिस कदर हुस्न परस्त है, वो लड़की जिस कदर खूबसूरत है, न जाने निकाह के बाद बंद कमरे में क्या कुछ। जरीना बेगम उसके खदशात जान चुकी थी। एक हाथ लैला रुख के सर पर रखकर फिर कहने लगी, फिक्र मत करो, इस घर के मर्दों के लिए सिर्फ खिलौना ही रहेगी। बेहतर है कि इब्राहिम को मजीद गुस्सा मत दिलाओ, वरना जानती तो हो घर के मुलाजमों के सामने भी जलील करने से बाज नहीं आता। लैला रुख रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी, मगर दिल में उस लड़की के लिए नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। गुस्से से रोते हुए कहने लगी कि काश अरबाज न मरता, अपने करतूतों की वजह से मौत के घाट उतर गया और अब जिंदगी मेरी अजाब बन रही है। खुद तो एक दफा मरकर मनो मट्टी तले दफन हो गया, लेकिन मेरा क्या? मैं कैसे इब्राहिम को उस लड़की के साथ एक रात के लिए भेज सकती हूँ? एक रात तो क्या, न जाने कितनी रातें इब्राहिम उस लड़की के साथ गुजारेगा, उसे बीवी का दर्जा देगा, वहीं से कब घर की मालकन बन जाएगी किसे खबर। लैला रुख ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वहीं बेहोश लड़की को देख करीमा बाई ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी, पता नहीं किस माँ की ये हसीन लड़की है, कितनी खूबसूरत, जैसे इस दुनिया की हो ही ना। अरे पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। ये हवेली के मकीन न जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। करीमा बाई की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। 17 साल लड़की से उसे हमदर्दी सी हो रही थी। होश में आते ही घबराते हुए कुरतुलैन रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी से निकाह नहीं करना, मुझे वनी नहीं बनना। लड़ाई तो मेरे बहनों ही ने की थी, कानून और इंसाफ के मुताबिक तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी, मुझे किस लिए यहाँ पर लाया गया है। वो रोए जा रही थी, मगर करीमा बाई उसके सामने एक सुर्ख रंग का लिबास रखकर कहने लगी, चुपचाप ये कपड़े पहन लो, तुम्हारा इब्राहिम खान के साथ निकाह जरा सी भी चूक चला करोगी तो तुम्हें न जाने कितनी मजीद मुसीबतें सहना पड़ेंगी। घबराए हुए अंदाज में एनी ने उन कपड़ों को देखा जो उसे अपने लिए कफन लग रहा था। जबरदस्ती ही सही, मगर करीमा बाई उसे दुल्हन बना चुकी थी। उजड़ी हुई हालत में बैठी वो रह रहकर अपने उसे बाप का ख्याल आ रहा था, जो बिस्तर पर लेटा शायद इस बात से भी अनजान था कि उसकी बेटी न जाने किस तकलीफ से गुजर कर आज इस नौबत को पहुंच चुकी है। अगर वो होशो हवास में होते तो शायद ये देखकर ही मर चुके होते। कुरतुलैन को बड़ी शिद्दत से वो वक्त याद आने लगा जब उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह बेहद खुशहाल थी। कुरतुलैन की उम्र इस वक्त 5 साल थी जब वो घर में बैठी मिट्टी के खिलौने बना रही थी कि उसके माँ बाप मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए। वो और उसकी बड़ी बहन अंदलीब दोनों ही भागकर माँ बाप के पास आए थे। जब जफर साहब ने मुस्कुराकर अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, बेटा अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में एक और नेमत भेजने का फैसला कर लिया, तुम्हारा बहन या भाई इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां ही खुशी से चहक उठी थी। अंदलीब कहने लगी, मुझे तो एक और बहन ही चाहिए, ये ऐनी की बच्ची तो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, इसके खिलौनों को हाथ लगा लो तो इतना शोर मचाती है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप इसे किसी और को दे दें, मुझे तो बस अपनी नई बहन ही चाहिए। जबकि वो ऐनी सदा की जिद्दी फौरन बड़ी बहन को धक्का देकर कहने लगी, क्यों, तुम चली जाओ ना कहीं, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो तुम एक बहन ही काफी हो, हर वक्त बड़ी होने का रोब छाड़ती रहती हो, मुझे तो एक भाई ही चाहिए, ठीक है ना अम्मी, आप मुझे एक भाई देंगी ना। ऐनी और अंदलीब की बातें सुनकर शाजिया बेगम तो मुस्कुरा गई थी। कहने लगी कि ये अल्लाह की जाती हम पर मेहरबानी कर सकती है, देखते हैं तुम दोनों बहनों में से किसकी दुआओं में असर होता है और अल्लाह ताला ने तुम दोनों में से किसकी सुनता है। दोनों बहनें तो उस दिन के बाद से 5 वक्त की नमाजी बन चुकी थी। जब भी कुरान पाक पढ़ती, नमाज पढ़ती तो बस यही दुआ उनके लबों पर होती कि अल्लाह ताला उन्हें भाई दे। जबकि दूसरी बहन की जिद थी कि नहीं, मुझे तो एक बहन ही चाहिए। वक्त यूं ही आंख में चोली करता हुआ गुजर गया। 9 माह पूरे हो चुके थे जब अचानक शाजिया की तबीयत खराब होने लगी। जफर साहब फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, मगर अचानक ही कुछ ऐसी पेचीदगियां बन गई जिनकी वजह से उन्हें ऑपरेशन करना पड़ा। शाजिया बेगम का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे से नवाजा था। ऐनी की थी खुशी की कोई इंतहा न रही, मगर शाजिया बेगम अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। जब डॉक्टर ने यह खबर बाहर आकर सुनाई तो जफर साहब को लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। वो अपने चंद घंटे पहले इस दुनिया में आने वाले बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों बच्चियां जो घर में इस इंतजार में थीं कि माँ बाबा भाई को लेकर घर आएंगे। भाई घर आया तो था, मगर साथ माँ का जनाजा भी घर में दाखिल हुआ था। बच्चियों में इतनी हिम्मत न थी कि अपने भाई को उठाती, भाई का चेहरा देखती। वो तो अपनी माँ की मैयत से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। ये बहुत बड़ा नुकसान था जो उन पर हुआ था। जफर साहब ने अपने बेटे को सीने से लगाकर रखा, उसे एक माँ बनकर पालने की पूरी कोशिश की, मगर फिर भी 15 रोज बाद वो बच्चा भी अपनी माँ के पास वापस इस दुनिया से जा चुका था। जफर साहब के पास उनका कुल सरमाया उनकी दोनों बेटियां अंदलीब और ऐनी रह चुकी थी। उन्हें पढ़ाया लिखाया, मगर उनके खर्च पूरे करते करते वो अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल चुके थे। एक रोज जफर साहब की बहन जो कि दूसरे गांव में रहती थी, वो अपने बेटे नबील का रिश्ता लेकर भाई के घर चली आई। अंदलीब की उम्र इस वक्त 21 साल थी। नबील इन्हीं दोनों एक फैक्ट्री में जॉब करने लगा था। 50,000 तनख्वाह थी। अब तक जब भी वो जफर साहब के सामने आया था बहुत अच्छा और नेक बनकर आया था। उसका असल चेहरा क्या था जफर साहब जान ही न सके। अपनी राज दुलारी बेटी अंदलीब का हाथ नबील के हाथ में दे दिया। वो खाला के यहाँ रुखसत होकर बेहद खुश थी। अब घर में जफर साहब और ऐनी ही बचे थे। ऐनी 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, 7 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। मगर उस शाम जब कॉलेज से वापस आई तो सामने जफर साहब और कुछ लोग घर में मौजूद थे। अपने बाप को बिस्तर पर लेटा देख ऐनी की तो चीख निकल गई थी। बाबा क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों लेटे हैं? वो तो अपने होशो हवास खो रही थी।
जब गांव के ही एक शख्स ने एनी के सर पर हाथ रखा और उसे समझाने लगे, बेटा तुम्हारे अब्बू का काम करते हुए एकदम ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें फालिज का अटैक आया है। डॉक्टर ने बर वक्त ट्रीटमेंट करके उनकी जान तो बचा ली, मगर फिलहाल उनका जिस्म हरकत करना बंद कर चुका है। तुम फिक्र मत करो, तुम इनका ख्याल रखोगी तो ये ठीक हो जाएंगे। अपने बाप को बिस्तर पर पड़ा देख एनी तो फूट फूट कर रोने लगी थी। बाप की तबीयत खराबी का सुनकर नबील और अंदलीब भी आए थे। नबील ने तो साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि बस अब आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलेंगे, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। भला जवान लड़की अकेली सारी जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी। अटकते हुए अंदाज में जफर ने भी अपनी बेटी की खातिर कड़वा खून भर लिया था। यूं नबील के कहने पर एनी ने अपना सारा सामान पैक किया और इस घर को छोड़कर अपने बहनोई के साथ उसके घर चली गई। एक नजर पलट कर उसने अपने इस घर को देखा था। वो तो इस बात से बेखबर थी कि अपने इस घर को वो देख के आखिरी बार रही है। शुरू शुरू में तो नबील ने उनका बेहद ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी सगी बहन जैसे एनी को समझता। एनी की भी अपनी बहन के साथ साथ अपनी खालाजाद नौशीन से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक साथ कॉलेज जाती और वापस आकर अपने बाप की खिदमत एनी खुद ही किया करती थी। एक रोज जब एनी कॉलेज से वापस लौट रही थी, दूर से कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती एक साथ 3 गाड़ियां बड़ी स्पीड के साथ आती हुई दिखाई दी। एक तरफ से कॉलेज की वैन जा रही थी जिसमें एनी मौजूद थी, वहीं दूसरी जानिब से इन तीनों गाड़ियों ने एकदम से जब यू टर्न लिया तो वैन वाले ने फौरन से गाड़ी को ब्रेक लगाई, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पीछे आने वाली गाड़ियों ने भी वैन को रुकते देख ब्रेक लगाई थी, मगर शायद ही उसकी अना पर जर्ब साबित हुई थी। अगले ही पल गाड़ी से खूबसूरत नौजवान बाहर निकला, ब्लैक कुर्ता शलवार में मलबूस, खूबरूज शख्सियत रखने वाला गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी की खिड़की बंद कर चुका था। वैन वाला भी नीचे उतरकर कहने लगा कि खान साहब माफ कर दीजिए, मैं तो बस गांव की तरफ जा रहा था, मुझे नहीं पता था ये आपकी गाड़ियां हैं। मगर वो अगले ही पल गुस्से से धाड़ कर कहने लगा, अंधे हो गए हो क्या? दोबारा अगर मुझे अपने सामने नजर आए तो फिर देखना तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। अगर मुझे कहीं जाने की जल्दी न होती तो फिर बताता। एनी ने जब ये देखा तो गुस्से से फौरन गाड़ी से निकल चुकी थी। नौशीन ने उसे रोका भी था, मगर वो अपना हाथ छुड़वाकर बाहर निकल आई। ओ हेलो मिस्टर, खुद को क्या किसी फिल्म का हीरो समझ रहे हो या फिर विलन हो? 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर तमाशा लगाए फिरते हो। गलती अंकल की नहीं बल्कि आपकी है। आप इतनी स्पीड से आ रहे थे कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। एक तो इतने बड़े हादसे से उन्होंने आपको बचा लिया, ऊपर से आप उन्हें ही सुनाए जा रहे हैं। सामने खड़ा शख्स जैसे उस मासूम सी लड़की को देखकर अपने होशो हवास ही गुम कर चुका था। वैन वाला घबराते हुए कहने लगा, अरे बिटिया ये क्या कर रही हो? जानती हो ये कौन है? अरे जो कोई भी हो, मेरी बला से जो गलत है वो गलत है, मैं किसी भी अमीर ज़ादे से नहीं डरती। वैन वाला तो घबराते हुए दोनों हाथ जोड़ चुका था। छोटे साहब माफ करते हैं, इस लड़की की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नौशीन ने फौरन उसे गाड़ी के अंदर खींचा था, मगर यही वो लम्हा था जब उस शख्स उस लड़की की मोहब्बत में जैसे गिरफ्तार ही हो चुका था। वैन वहां से आगे चल चुकी थी। एक बार पलटकर एनी ने खिड़की से देखा था, वो वहीं पर मुंजमद खड़ा उसे ही देख रहा था। नौशीन पहले तो घबराई, फिर कहने लगी, अरे लगता है छोटे खान तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुके हैं। जवाब में एनी ने उसके कांधे पर थप्पड़ मार दिया। अरे चुप ही करो, मुझे वैसे ही गुस्सा चढ़ा है, तुम प्यार मोहब्बत की बातें लेकर बैठ गई हो। जवाब में नौशीन कहने लगी, हाँ दुआ करो कि ये मोहब्बत ही हो, वरना ये लोग तो गुस्से में बस अपनी बंदूकें चलाते हैं और लोगों को ठिकाने लगाते हैं। गाड़ी घर के बाहर रुक चुकी थी। वो लड़कियां जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख एनी और नौशीन दोनों घबरा गई। सामने अंदलीब रो रही थी और नबील भी हड़बड़ाया हुआ था। एनी फिक्रमंदी से कहने लगी, क्या हुआ है? नबील ने सिर्फ 1 सेकंड लगाया था फैसला करने में। अपनी बहन को कहने लगा, नौशीन तुम चाचा इफ्तिखार के घर चली जाओ, जब तक मैं न कहूँ तुम वहां से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। अगर रास्ते में कोई तुमसे पूछे भी कि नबील कौन है तो कहना मैं उसे नहीं जानती। जाओ। इस अफरा तफरी को देख दोनों लड़कियां समझ नहीं पाई कि आखिर असल माजरा क्या है। वहीं अंदलीब रो रही थी कि मेरी बहन के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी साली नहीं बल्कि आपकी खाला की बेटी भी है, आपकी बहनों जैसी है। नबील कहने लगा, हाँ पिछले कई महीनों से तुम्हारी बहन और बाप का खर्चा उठा रहा हूँ, अब इनका इतना हक तो बनता है कि मेरे लिए कुर्बानी दे सके। बदले में मैं खालू का अच्छे से इलाज करवाऊंगा, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, मगर इसे मेरे लिए ये कुर्बानी देनी होगी। एनी कभी अपनी बहन का चेहरा देखती और कभी बहनोई का। क्या आखिर हुआ क्या था? अंदलीब रोते हुए उसे बताने लगी कि तुम्हारे भाई का छोटे चौधरी से झगड़ा हो गया, पैसों के लेन देन की कोई बात थी। उससे में आकर तुम्हारे भाई ने छोटे खान से हाथापाई शुरू कर दी। वो गोली नबील पर चलाने वाला था, मगर हाथापाई में गोली अरबाज खान पर चल गई, वो मौके पर ही मर गया। ये वाकया 1 हफ्ते पहले पेश आया, मगर अब जिरगे का फैसला है कि नबील अपनी बहन को वनी में हमारे हवाले करेगा या फिर खून बहा की रकम 2 करोड़ देगा। एनी के वजूद में तो जैसे किसी ने एक साथ लातादाद सुइयां चुभोई थी। वो घबराए हुए कहने लगी कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, बताएं आपने अपनी जान बचाने के लिए ये कदम उठाया था। मगर सुनता कौन? नबील ने अपनी बहन को तो बचा लिया, मगर अपनी साली को वनी की भेंट चढ़ा दिया था। एक आखिरी बार उसने इल्तिजाया नजरों से जरीना बेगम को देखा, जो उसे ही हकारत भरी नजरों से देख रही थी। कहने लगी, लड़की मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें नोच नोच कर तुम्हारे टुकड़े कर डालूं। तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे की जान ले ली, तुम जैसे लोग ऐसे ही हड हराम होते हैं। तुम लोगों पर एहसान कर दिया जाए तो खुद को हमारे बराबर समझने लगते हो। तुम्हें यहाँ पर जिस कदर तकलीफ दी जाएगी तुम्हारा वो भाई वहां पर बैठकर महसूस करेगा, शायद इसी तरह हमारे दिल को ठंडक पहुंच सके। रोते हुए तो ये भी न कह सकी यानी कि मैं नबील की बहन नहीं बल्कि साली, उसकी कजन और अपनी बहन का घर बचाने की खातिर यहाँ पर आई हूँ, वरना बाप तो चारपाई पर था और अंदलीब का घर उजड़ जाता।
नौशीन उसकी बहनों जैसी थी। वो चाहकर भी नौशीन का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि जो क़यामत उस पर इस वक्त गुजर रही थी फिर नौशीन पर गुजरना पड़ती। वो रोते हुए आखिरी बार जरीना के कदमों में गिरी थी। कहने लगी कि आप कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अदालत है, आपको इंसाफ देगी। इन दो मर्दों की लड़ाई में आप एक मासूम लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हैं? आपकी भी तो कोई बेटी होगी। अभी अल्फाज उसकी जबान पर आए ही थे कि इब्राहिम उसे बालों से पकड़कर सामने पटक चुका था। खबरदार, जो तूने हमारे घर की औरतों का नाम लेने की भी कोशिश की तो अपनी औकात में रह। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। उसका सर मेज पर लगने की वजह से खून का एक फव्वारा माथे से निकला था। वो वहीं फर्श पर बैठी थी। घबराए हुए बैठा मौलवी साहब निकाह शुरू कर चुका था। इब्राहिम जिस कदर शातिर नजरों से उसे देख रहा था, भाई का इंतकाम तो वो अलग ही बात थी, मगर हकीकत में तो वो इस लड़की की नाजुक जवानी पर अपनी मोहर जब्त करना चाहता था। कुरतुलैन जफर खान, आपका निकाह इब्राहिम खान से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? अभी अल्फाज मौलवी साहब ने कहे थे जब सामने दरवाजे पर एक वजूद नमूदार हुआ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इस आवाज पर सभी चौंके। रोती हुई एनी ने समझा कि शायद कोई मसीहा उसकी मदद के लिए आया है। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी। मुस्तफा खान, इब्राहिम इस वनी में आई लड़की से निकाह कर रहा है। आंखों में आए आंसू लिए वो झट से खड़ी हुई थी। दोनों हाथ जोड़कर उस शख्स की तरफ भागी थी कि शायद वो मदद कर दे, मगर जब गौर से चेहरा देखा तो दिमाग में घंटियां बज चुकी थी, क्योंकि ये तो वही खान था जिससे वो सड़क पर अच्छी खासी बातें सुनाकर आ चुकी थी। छोटे भाई के मारे जाने का दुख अपनी जगह था, मगर वो भी एक पढ़ा लिखा नौजवान था और पुलिस अदालत के जरिए इंसाफ चाहता था। वो तो किसी लड़की पर भी जुल्म होता नहीं देख सकता था, मगर जब अपने सामने खड़ी एनी को देखा तो जैसे होशो हवास से बेगाना ही हो चुका था। रो रो कर सूजी हुई आंखें, चेहरे पर जख्मों और नील के निशान देखकर वो तड़प सा चुका था। एक नजर एनी पर डालने के बाद उसने इब्राहिम को देखा। कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जानते हुए भी कि आप पहले से शादीशुदा हैं, एक लड़की के साथ आप इस तरह का रवैया कैसे रख सकते हैं? कोई इससे शादी नहीं करेगा, सुना आपने? इब्राहिम मलिक ने खुद से छोटे लड़के को बोलते देखा तो कहने लगा, मुस्तफा, शायद तुम भूल रहे हो, वालिद साहब के जाने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूँ। ये लड़की वनी होकर आई है, इसका निकाह इस घर में होगा, तभी इस घर में रह सकेगी। मगर अगले ही पल मुस्तफा ने एक नजर उस लड़की को देखने के बाद कहा, निकाह ही करना है ना? वनी में आई लड़की को निकाह करके इस घर में रखते हैं, तो इसके साथ शादी आप नहीं बल्कि मैं करूंगा। थोड़ी बहुत हिम्मत जो एनी में आई थी, वो जो समझ रही थी कि शायद ये शख्स बाकियों से अलग है, उसकी मदद करेगा, उसे यहाँ से वापस ले जाएगा, मगर ये अल्फाज सुनकर एनी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। रोते हुए चीख चीख कर कहने लगी, मैं कोई तुम लोगों की जर खुलीद गुलाम नहीं हूँ। समझ क्या रखा है आप लोगों ने मुझे? क्या आप लोगों में खौफ खुदा मौजूद नहीं है? मुझे तुम लोगों में से किसी से भी शादी नहीं करनी। खुदा के वास्ते मुझे वापस जाने दो, मेरा बाप न जाने किस हालत में होगा। वो रोते हुए फर्श पर गिर चुकी थी, मगर मुस्तफा खान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और बाजू से घसीटने के अंदाज में सोफे पर पटका था। लड़की, तुम्हारे लिए कोई राह फरार नहीं है। तुम्हारी जिंदगी इस हवेली की दीवारों पर टक्करें मार मार कर खत्म हो जाएगी, मगर तुम्हें इस हवेली से बाहर कदम निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी। मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए, मुस्तफा ने जिस अंदाज में कहा था। इब्राहिम गुस्से से मुट्ठियां भींच कर पीछे हट गया। रोती हुई एनी ने खुद से 5 साल बड़े मुस्तफा को देखा, जो न जाने उससे अब किस किस बात का बदला लेने वाला था। अपनी आदत से तो बेहद सख्त मिजाज और जालिम लग रहा था। रोते हुए उसने निकाह कबूल कर लिया, निकाह नामे पर साइन किया और मुस्तफा खान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। करीमा बाई, इस लड़की को मेरे कमरे में छोड़ दीजिए, जब तक मैं न कहूं कोई इस लड़की पर हाथ तक नहीं उठाएगा। ये कहकर फोन पर किसी से बात करता मुस्तफा वहां से जा चुका था, जबकि उस लड़की को करीमा बाई मुस्तफा के कमरे में छोड़ चुकी थी। फर्श पर बैठी उससे सिसक कर रो रही थी। कुछ देर बाद न जाने इस घर में क्या होने वाला था। आने वाली जिंदगी बिल्कुल तारीक अंधेरों में डूबी हुई थी। लैला रुख तो खुश थी कि इब्राहिम की शादी उस लड़की से नहीं हुई, मगर इब्राहिम खानजादा के अंदर झुलस रही आग किसी तौर भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार चहलकदमी करता उस लड़की के नशेबो फराज को याद करके झुलस रहा था। सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसने सोच रखा था कि आज की रात उस लड़की की अजियतनाक रात बना देगा, उसकी जवानी को नोच खाएगा, पल पल तड़पेगी, रोएगी, सिसकेगी, मगर वो उसकी सिसकियों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। उसके वजूद के एक एक हिस्से पर अपनी मोहर जब्त करेगा। मगर अपनी जगह अपने भाई के निकाह में देख वो तड़प ही तो चुका था। रात के तकरीबन 11:15 बज चुके थे जब नफरत और बेचैनी में इब्राहिम खान अपने बिस्तर से उठा। लैला रुख उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। कुछ देर पहले सिर्फ और सिर्फ लैला रुख की ख्वाहिश पर ही उसके साथ एक हसीन रात बिता चुका था, मगर अंदर मौजूद बेचैनी कम नहीं पड़ रही थी। वो शायद अब एनी को पाकर ही खत्म होने वाली थी। धीरे से लैला रुख के पहलू से निकलकर वो बाहर आया। आस पास नजर दौड़ा रहा था। सहन में आया तो वहां पर अभी तक मुस्तफा की गाड़ी मौजूद नहीं थी, यानी वो लड़की कमरे में अकेली थी। इस बात से अनजान के इब्राहिम खानजादा उसकी ताक लगाए बैठा है। वो फर्श पर बैठी बेड से टेक लगाए बेखबर सो चुकी थी जब धीरे से दरवाजा खुला। दुल्हन के रूप में अपना हशर बिगाड़े वो लड़की इस वक्त भी कयामत ढा रही थी। इब्राहिम खानजादा धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब गया और घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और गहरी सांस उसके चेहरे पर खारिज करके कहने लगा, कसम से इस हुस्न को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला।
निकाह बेशक तुम्हारा मुस्तफ़ा से हो चुका है, मगर तुम इस हवेली के हर मर्द के बिस्तर की जीनत बनोगे। ये कहकर उसने अपनी उंगली उसके होंठों पर फेरना शुरू कर दी, जिस पर जख्म था। अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस करके वो एकदम गड़बड़ा कर उठी थी, मगर इससे पहले कि ऐनी के लबों से चीख निकलती, इब्राहिम ने उसका मुंह दबोच लिया था। जरा सी आवाज मत निकालना, वरना तुम्हारी चीखें पूरी हवेली सुनेगी। वो अपने सामने इस जानवर को देखकर घबरा चुकी थी। फौरन पीछे हटी, उठने लगी, मगर वो पूरी तरह उसे अपने हिसार में ले चुका था। इब्राहिम खानज़ादा उसका मुंह दबोच कर दूसरे हाथ से बाजू मरोड़ते उसे दीवार से लगा चुका था। क्या समझ रही थी? मेरी शिद्दतों से बच जाओगी? बिल्कुल नहीं। अपने भाई की मौत का बदला तो अलग बात है, मैं तो तुम्हारे हुस्न को देखकर ही दीवाना हो चुका हूँ। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। ऐनी पूरी कोशिश कर रही थी खुद को छुड़वाने की, मगर वो उसके मजीद करीब आता अपना चेहरा उसकी गर्दन की तरफ ले आया था। रोते हुए उसने पूरी कोशिश की थी कि यह शख्स उससे दूर हो सके। जब थोड़ा सा दरवाजा खुला, मुस्तफ़ा खानज़ादा सामने खड़ा था। जब अपनी वनी में आई बीवी के साथ अपने भाई को जबरदस्ती करते देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा, खान लाला, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी जिंदगी में आज तक उसने कभी अपने खान लाला से बदतमीजी नहीं की थी, मगर आज वो खान लाला को गिरबान से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मार चुका था। थू है आपके किरदार पर, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको लाला कहते हुए भी कोफ्त महसूस हो रही है। आप मेरी इज्जत पर हाथ कैसे डाल सकते हैं? ये बीवी है मेरी। मुस्तफ़ा खान का सफेद चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो जिस अंदाज में ठाड़ा था, इब्राहिम खानज़ादा को लगा जैसे वो यूं पकड़े जाने पर मर ही जाएगा। अगले पल कहने लगा, होश में आओ, भाई हूं मैं तुम्हारा, बाप की तरह पाला है मैंने तुम्हें। ये लड़की इस घर के हर मर्द के बिस्तर की जीनत बनने के लिए आई है, ये वनी होकर आई है। मजीद कुछ इब्राहिम खानज़ादा कहता मुस्तफ़ा चिल्ला उठा था, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार, जो ये गंदे अल्फाज आपने इस मासूम बाकिरदार लड़की के लिए इस्तेमाल भी किए तो। घबराई हुई ऐनी दीवार से लगी रो रही थी, कांप रही थी। घर के सभी अफराद जाग कर वहां पर आ चुके थे। सरीना बेगम ने तो दोनों बेटों को आकर छुड़वाया था। सुल्तान खान ने भी उल्टा मुस्तफ़ा को ही डांटा था। करीमा बाई को कहने लगे, पकड़ो इस लड़की को और ले जाओ जानवरों के पाड़े में, ये लड़की इस हवेली में नहीं रहेगी। ऐनी घबराए हुए अंदाज में मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ चुकी थी। जो भी था, जैसा भी था, मगर उसे इस वक्त मुस्तफ़ा ही अपना मसीहा लग रहा था। मगर सुल्तान खान के कहर के आगे मुस्तफ़ा को भी खामोश होना पड़ा। वो इब्राहिम खान से बड़ा था, मगर घर के फैसलों की जिम्मेदारी उसने इब्राहिम खान को ही दे रखी थी। बाहर के मामलात वही संभाला करता था। घबराई हुई ऐनी को वो उस कमरे से जाने तो नहीं देना चाहता था, मगर सुल्तान खान के कहने पर उसने अपना हाथ ऐनी से छुड़वा लिया था। करीमा बाई उसे हवेली के सामने मौजूद बाड़े में छोड़ आई थी। सारी रात वो रोती हुई घबराए हुए अंदाज में हाथ में एक डंडे लिए आसपास देखती हुई गुजार गई कि कहीं कोई दरिंदा एक बार फिर उस पर जुल्म करने के लिए ना आ जाए। अगली सुबह उसकी जिंदगी की इंतहाई हौलनाक सुबह थी। बाड़े में काम करने वाली मुलाजिम उसके हाथ में झाड़ू देकर कहने लगी, ओ बीबी, छोटे खान से शादी करके क्या समझ रही है कि तुझे इस घर की छोटी बहू का दर्जा मिल जाएगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। चल उठा झाड़ू और साफ सफाई कर। खान बेगम ने तो साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि कल वनी में होकर आने वाली लड़की तुम नौकरों की भी नौकरानी है, इसका जैसा मर्जी इस्तेमाल करो, कोई तुम लोगों को रोकने टोकने वाला नहीं। कल रात जो तमाशा तुमने हवेली में लगवाया है ना, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। ऐनी घबरा चुकी थी। चुपचाप करीमा बाई जैसे जैसे उस पर हुक्म चला रही थी वो साफ सफाई कर रही थी। पूरे बाड़े की झाड़ू लगाने के बाद उसे वो एक तरफ ले आई और कचरा उठाने लगी। ऐनी के हाथों में छाले बन चुके थे। सारी रात जाग के रहने की वजह से उसका वजूद दर्द कर रहा था। बुखार में भी वो तड़प रही थी, मगर यह एहसास किसे था? दिल ही दिल में कह रही थी कि मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी नबील भाई। अपने हाथों से उठने वाले छालों पर एक नजर डालकर जैसे उसने कचरे की तरफ हाथ बढ़ाए कि अगले ही पल बाड़े में मुस्तफ़ा खानज़ादा दाखिल हुआ, जो कब से हवेली से उस लड़की को काम करते हुए देख रहा था। उसे तो वो पहली ही नजर में शोख, चंचल और पुरएतमाद लड़की के तौर पर भाई थी, मगर यह हवेली और इस हवेली के उसूल उसे अंदर तक तोड़ चुके थे। अरबाज खान अपनी गलती की वजह से मारा गया था। ये बात इस हवेली का हर शख्स जानता था, मगर जानबूझकर अपना पैसा और हुक्मरानी और ताना तो इस घर के लोगों का शेवा था। जैसे ही वो बाड़े में दाखिल हुआ तो फौरन सर झुकाकर नौकरानी सलाम करने लगी। मुस्तफ़ा की तरफ देखे बगैर जैसे ही उसने कचरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुस्तफ़ा ने उसे थाम लिया। कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? हाथ साफ करो अपने। जवाब में वो घबराते हुए कहने लगी कि इस घर के मर्दों के हाथ का खिलौना बनने से तो बेहतर है कि मैं ये सारे काम कर लूं। ना करता गुनाह की सजा मिल रही है तो कम से कम मेरी इज्जत तो महफूज रहे। जो हालत उसकी हो रही थी, मुस्तफ़ा ने अपनी उंगलियां उसके माथे पर रख दी। बुखार में तपता वजूद देखकर वो कहने लगा, चलो मेरे साथ, तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ऐनी इनकार करने लगी, कहने लगी, मेरी दवा सिर्फ मेरे बाबा है, आप मुझे मेरे बाबा के पास ले जाएं। मगर मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़े हुए उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा चुका था। नौकरानी सारा माजरा देखने के बाद सीधा हवेली के अंदर भागी थी। गजब हो गया खान बेगम, गजब हो गया, ये तो हवेली के नस्ल दर नस्ल चले आ रहे दस्तूर ही बदल गए। नौकरानी ने जब लगाई बुझाई करना शुरू की तो जरीना बेगम, जो अभी अभी उठकर अपने कमरे से बाहर आई थी, उस नौकरानी को देखकर कहने लगी, क्या गजब हो गया,
अब क्या क़यामत आ गई? एक तो जब से ये लड़की इस घर में आई है हम पर तो बस क़यामतें ही टूट रही हैं। अब क्या हो गया? वो नौकरानी कहने लगी, आज तक इस खानदान में वनी होकर आने वालियों के साथ कैसा सलूक बढ़ता गया, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। अरे पहले जमाने में तो वनी में आने वाली लड़कियों को चुनवा दिया जाता था, मगर ये कैसी लड़की है? कल निकाह हुआ और आज छोटे खान उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर बड़े अस्पताल लेकर गए हैं। हल्का सा बुखार ही तो हुआ था, अभी तो उसने यहाँ पर बड़ी तकलीफें सहनी थी। अरे नास मिट्टी इस सालिम की, जिसने हमारे छोटे खान अरबाज बाबा को कितनी बेरहमी से मार दिया। और यहाँ हमारे छोटे खान हैं जिनको अपने भाई की मौत की परवाह ही नहीं और उस लड़की को लेकर घूम रहे हैं। जरीना बेगम तो गुस्से से बिफर उठी थी। लैला रुख कहने लगी, मुझे तो लगता है मुस्तफा के दिल में पहले इस लड़की के लिए कुछ था, तभी वो उसका इतना ख्याल कर रहा है। जरीना बेगम गुस्से से अपने हाथ भींच चुकी थी। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने दवा देने के बाद कुछ देर वहीं पर एनी को आराम करने को कहा। जिस तरह एनी की हालत थी, डॉक्टर कहने लगे, ऐसे लग रहा है जैसे इन पर किसी ने बेतहाशा जुल्म किया है। डॉक्टर ने एनी को सुकून के इंजेक्शन लगा दिया था। वो वहीं पर सो चुकी थी, अपने दोनों हाथ बसे पुश्त बांधे। मुस्तफा खानजादा कितनी देर उस लड़की को देखता रहा, जैसे जैसे उसके सरापे पर अपना ध्यान कर रहा था। उसके दिल में मोहब्बत जोश मार रही थी। दिल ही दिल में वो सोच चुका था कि ये लड़की मेरी पहली नजर का प्यार है। अब तक कोई भी मुस्तफा खानजादा को बहका नहीं पाया। इस लड़की में कुछ तो खास है जो मुस्तफा खानजादा उसकी तरफ खींचा चला गया है। इस लड़की को वो अब किसी के हाथों जाया होने नहीं देगा। 3 घंटे पुरसुकून सोने के बाद एनी की जब आंख खुली तो मुस्तफा कमाल वहीं सामने ही बैठा था। घबराते हुए उसने फौरन से किनोला अपने हाथ से उतारना चाहा, मगर मुस्तफा उसका हाथ थाम चुका था। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, रिलैक्स, अभी नर्स आकर तुम्हारा किनोला खुद उतार देगी, बस थोड़ी सी ड्रिप रह गई है। मुस्तफा का नरम लहजा देखकर एनी घबरा चुकी थी। उसे खुद से घबराता देखकर कहने लगा, डर क्यों रही हो? जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता था लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि मैं कुछ कर नहीं पाया। जानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, मुझे अपने भाई के मरने का भी दुख है, लेकिन असल कसूरवार तुम्हारा भाई है, उसे ही उसके किए की सजा मिलेगी। तुम्हें अगर मैं यूं ही छोड़ देता तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाती। वनी में आने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूँ, इसी खातिर मैंने तुमसे निकाह किया। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। एनी ने गौर से उसे देखा और फिर कहने लगी कि आप भी तो खान हवेली के मकीनों में से एक हैं, फिर आपके लहजे में इतनी नरमी क्यों है? मैंने तो आपके साथ सड़क पर बदतमीजी भी की थी। जवाब में वो हल्का सा मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लगा, तभी तो तुम मेरा दिल जीत चुकी थी। मुझे ये डरी सहमी रोती हुई लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। बेधड़क बात करने वाली, किसी से भी अपने हक के लिए लड़ जाने वाली लड़कियां पसंद है। तुम्हारा ये रूप देखकर मेरे दिल में बहुत दुख हुआ है, मगर फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। कुरतुलैन। अपना नाम मुस्तफा खान के लबों से सुनकर कुरतुलैन के पूरे वजूद में एक करण सा दौड़ गया था। उसके साथ गाड़ी में बैठकर बाहर निकली तो मिन्नतें करते हुए कहने लगी, मुझे अपने बाबा से मिलना है, न जाने वो किस हालत में होंगे, मुझे आखिरी बार अपने बाबा से मिलने दीजिए। जवाब में मुस्तफा ने एक नजर उसकी आंखों में आंसुओं को देखा और फिर अपना हाथ उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को साफ किया और कहने लगा, रोना बंद करो, बताओ कहाँ है तुम्हारे बाबा? कुछ देर बाद ही मुस्तफा की गाड़ी तंग गलियों में आ चुकी थी, मगर जैसे उसने घर में कदम रखा तो सामने का मंजर उसके जिस्म से रूह को जुदा कर चुका था। सहन में एक जनाजा था जिसे लोग कांधा देकर उठा रहे थे। सामने उसकी बहन बेहिस हरकत सख्ती की कैफियत में पड़ी हुई थी। कलमा शहादत पढ़ा जा रहा था क्योंकि जफर साहब गुज़िश्ता रात इंतकाल कर चुके थे। चीख मारकर वो अपने बाप की मैयत से लिपटी थी। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, देखिए मैं वापस आ गई, कुछ नहीं हुआ मुझे। नबील तो घबरा सा चुका था। सामने मुस्तफा खानजादा को देखकर तो उसके होशो हवास गुम हो गए। चीख चीख कर रोते हुए कहने लगी, ये सब कुछ करना चाहते थे ना आप, इसीलिए लाए थे मुझे और मेरे बाबा को यहाँ पर। हम अपने घर में ही खुश थे, आपने अपने गुनाहों की सजा की भेंट मुझे और मेरे बाप को चढ़ा दिया। शर्म नहीं आती आपको? बजाय इस बात का जवाब देने के नबील ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर मुस्तफा उसे पकड़ चुका था। फौरन पुलिस बुलवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू करवा दी गई थी। दोनों बहनें गले लगकर कितनी ही देर रोती रही थी। वहां पर बैठे हुए ये भी राज खुल चुका था कि एनी तो बेकसूर है। वनी में तो नौशीन को आना चाहिए था, ना कि एनी को। रात गहरी हो रही थी, हवेली वापस लौटना भी जरूरी था। मुस्तफा ने यह वादा किया कि वो एनी पर एक आंच भी नहीं आने देगा, यह उसकी जिम्मेदारी है। वो हवेली में किसी को भी इस पर उंगली तक उठाने नहीं देगा। आप बेफिक्र रहें। एनी आना तो नहीं चाहती थी, मगर वो मुस्तफा के साथ चल पड़ी। उसकी रोती हुई सिसकियां मुस्तफा की आंखों में भी बार बार पानी ला रही थी। एनी को कोई सहारा न मिला तो वो मुस्तफा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही। वो गाड़ी रास्ते में रोक चुका था। कितनी देर उसका दिल बहलाता रहा, उसे अपने होने का एहसास दिलाता रहा। जब दोनों घर पहुंचे तो सामने जरीना बेगम कचहरी लगाकर बैठी थी। एनी तो मुस्तफा के पीछे चुप गई, मगर जरीना बेगम कहने लगी, छोड़ो इस लड़के का हाथ, ये हमारी मुजरिम है, तुम इसे कैसे अपनी बीवी तस्लीम कर सकते हो? जवाब में बड़े ही बाहिम्मत अंदाज में मुस्तफा खानजादा ने कहा, मैंने इसे अपनी वनी में नहीं समझा, ये लड़की हमारे घर की इज्जत है और मेरी बीवी है। अगर आप लोग इसे इस घर में वो मकाम नहीं दे सकते तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। खान बेगम अपने बेटे का चेहरा देखने को तरसती रहेंगी। एक बेटा तो अपनी हरकतों की वजह से मौत के घाट उतर गया,
अब दूसरे को क्यों जिंदा होते हुए भी नजरों से दूर करना चाहती हैं? ये हम सभी लोग जानते हैं कि अरबाज खान मजबूर लोगों को कर्ज देकर फिर बंदूक की नोक से सूद समेत निकलवाया करता था। जहां पर ये सारा हादसा हुआ वहां की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुकम्मल मिल चुकी है। बंदूक नबील पर अरबाज ने तानी थी। अरबाज ने अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई की। जब गोली चली और अरबाज को ही लग गई। हकीकत सामने थी, मगर फिर भी हवेली के मकीन मानने को तैयार नहीं थे। कई रोज तक वो उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मुस्तफा खान के कहने पर करीमा बाई उसके कमरे में खाना भिजवा चुकी थी, तो वो खा लिया करती थी। धीरे धीरे मुस्तफा की अच्छाइयां देखकर, उसकी इतनी अपनायत और ख्याल देखकर ऐनी की सोच भी बदलने लगी थी। दिल में मुस्तफा के लिए मोहब्बत आने लगी थी। वो भले ही उसके निकाह में थी और पिछले 2 महीनों से उसके साथ यहाँ पर मौजूद थी, मगर एक बार भी उसने अपना हक वसूल करने की कोशिश नहीं की थी। हवेली के लोगों ने जब बार बार ऐनी की तजलील की तो मुस्तफा खान इन सबसे दूर ऐनी को लेकर शहर चला आया। यहाँ पर उसका अपना अपार्टमेंट मौजूद था। ऐनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये शख्स उसके लिए अपने घर वालों से दूर रहकर साबित क्या करना चाहता है। ये तो वो महसूस कर चुकी थी कि मुस्तफा खानजादा उससे मोहब्बत करता है। कोई भी मोहब्बत और एहसास के बगैर इतने बड़े कदम नहीं उठा पाता, मगर फिर भी शायद वो मुस्तफा से इकरार करवाना चाहती थी। उस शाम खाना बनाने के बाद नहाकर अपने लंबे घने बालों को खोले वो आईने के सामने आई। उनमें कंघी फेर रही थी। पानी की बूंदें टपक कर उसकी गर्दन को भिगो रही थी। न जाने कब बगैर जाप पैदा किए मुस्तफा खानजादा कमरे में दाखिल हुआ। सर से लेकर पांव तक पूरे सरापे को गौर से देखने के बाद अब तक खुद पर काबू पाए हुए मुस्तफा खानजादा की तो जैसे जब्त टूट रहे थे। वो कदम ब कदम चलता हुआ उसके करीब आया और अगले ही पल अपना हाथ ऐनी की कमर पर रख दिया। वो बेसाख्ता अपने लब उसकी गर्दन पर रख चुका था। जब ऐनी ने एकदम से आईने में उभरता हुआ मुस्तफा का अक्स देखा तो पूरा वजूद लरस चुका था, मगर उसने हटने की कोशिश नहीं की थी। वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। मुस्तफा के वजूद को अपने करीब महसूस कर रही थी। मुस्तफा ने अपने लब उसकी गर्दन से हटाकर माथे पर रख दिए, फिर कान के करीब सरगोशी करके कहने लगा, तुम बेहद खूबसूरत हो। मुस्तफा खानजादा तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। इस लाइलाज मर्ज की दवा सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें पाकर मैं मजीद तुम्हारे इश्क में सरशार हो जाना चाहता हूँ। ऐनी कुछ कहना चाहती थी, मगर मुस्तफा खानजादा की शिद्दतों को देखकर वो कुछ बोल ही ना पाई। उसे बोलने का कुछ मौका ही ना मिला। जब बड़े ही प्यार से मुस्तफा कमाल उसे बेड पर लेकर आया और फिर अपनी मोहब्बतें उस पर निछावर करने लगा। एक पल को मुस्तफा को देखकर वो घबराई थी। उसे इन लम्हात से खौफ आता था, मगर जिस कदर मोहब्बत और नरमी का मुजाहरा मुस्तफा ने किया था वो सारा डर तो कहीं गायब ही हो चुका था। वो लम्हे उसकी जिंदगी के हसीन तरीन लम्हे थे जब मुस्तफा ने उसे बाकायदा अपनी बीवी होने के रुतबे पर फाइज किया था। जब ऐनी अपने होश में वापस लौटी तो मुस्तफा का वजूद का बोझ अपने ऊपर महसूस करके फौरन हटी थी। चेहरा छुपाए वो शर्मा सी गई, मगर मुस्तफा उसके चेहरे से हाथ हटाकर कहने लगा, शर्माना कैसा? आखिर को मेरी मनचाही बीवी हो। तुम्हें हर फिक्र हर परेशानी से दूर यहाँ पर लाया, इसलिए ताकि तुम्हारी आंखों में आंसू न देख सकूं। खानजादा मकीनों की वजह से जिस खौफ में, जिस डिप्रेशन में तुम मुब्तला हो, मैं तुम्हें उससे निकालना चाहता हूँ। अपना मकाम पहचानो, अपने असल रूप में वापस आओ, बिल्कुल हिटलर बनकर, ताकि दोबारा हम एक साथ वापस उस हवेली में जा सकें। ऐनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बाद नबील भी जेल से छूट चुका था। खानजादा खानदान पहली बार हकीकत को मद्देनजर रखते हुए अपनी शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो चुका था। नबील बेहद शर्मिंदा था। जैसे तैसे ढूंढते हुए वो ऐनी तक पहुंचा था। हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर मुस्तफा खान ना होता तो न जाने आज तुम कैसे कैसे भेड़ियों के हत्थे चढ़ चुकी होती। सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर और इस पूरे हादसे में मुस्तफा खान के मिल जाने पर वो अपने बहनोई को माफ कर चुकी थी, मगर इस शर्त पर कि उसकी बहन को खुश रखेगा, आंख में आंसू नहीं आने देगा। बार बार जरीना बेगम उसे वापस घर आने को कह रही थी, मगर मुस्तफा खान का कहना था कि मैं तभी आऊंगा जब मेरी बीवी को इस घर में वही इज्जत मिलेगी जो लैला रुख को मिलती है। मजबूरन बेटे की खातिर उन्हें मानना पड़ा। इस शाम एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। जब कुरतुलैन मुस्तफा खानजादा के साथ उसका बाजू थामे घर में दाखिल हुई थी। घर के मकीनों के लिए उसे अपनी बहू तस्लीम करना मुश्किल था, मगर ये तमाम लहजे और अंदाज कुरतुलैन का बुरे नहीं लग रहे थे। वो बिल्कुल मुस्तफा खानजादा की परछाई लग रही थी। आज तक मुस्तफा खानजादा के सामने जरीना बेगम की भी नहीं चली थी। भला उसकी बीवी पर कैसे कोई अपनी मन मर्जी चला सकता था। दोनों वापस इस घर में आ चुके थे। धीरे धीरे जरीना बेगम का रवैया भी उसके साथ ठीक हो गया। जैसे जैसे वो हकीकत से आशना हुई, वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन था जब कुरतुलैन ने खुशी से गहरी सांस खारिज की थी। मुस्तफा खानजादा ने एक नजर उसे देखने के बाद कहा कि आज तो हमारी बीवी कयामत ठा रही है। अपनी छोटी नाजुक सी बीवी के साथ क्या आज की रात थोड़ी शरारत कर लें? उसने ऐनी के बालों को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए कहा तो ऐनी फौरन शर्मा सी गई। छट से कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं, दिन ब दिन आपकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। चुपचाप बेड की दूसरी तरफ जाकर सो जाइए। अगर मुझे तंग किया तो मैं उठकर सोफे पर सो जाऊंगी।
जवाब में उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। कहने लगा कि बमुश्किल 50 किलो का तो वजन है आपका, और चलिए मुझसे खुद को छुड़वाने। अरे तुम्हें तो नाज करना चाहिए अपनी किस्मत पर, कितना रोमांटिक शौहर मिला है। ये कहकर वो अपनी बड़ी हुई शेव उसके गाल पर रगड़ चुका था। उसे सककर फौरन खुद को छुड़ाने लगी, मगर अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी। उसे मुस्तफ़ा की शरारतें तो अच्छी लगती थी। दिल ही दिल में ये दुआ करने लगी कि बस उसकी जिंदगी यूं ही खुशियों से भरी गुजर जाए। अगर इस घर में मुस्तफ़ा खानज़ादा ना होता तो, या वो भी खानदान के बाकी मर्दों जैसे होता तो, न जाने आज कुर्रतुल ऐन किस हाल में होती।